definition, causes, how to diagnose, how to investigate, and how to manage. So what is preterm labor? Preterm labor is preterm. नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है प्रेगनेंसी का? द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज 280 days और 40 days. ठीक है. सो द प्रीटर्म लेबर इज व्हेन द लेबर स्टार्ट्स बिफोर 37 weeks. बिफोर 37 weeks. फ्रॉम 37 to 42 is term, and after 42 weeks it is post term. बट जैसे जैसे टर्म, जैसे हम काउंट करते हैं कि 40 वीक्स है ना, डेट हो गई ईडीडी जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 40 वीक्स. ठीक है. तो 40 वीक्स के बाद में जैसे जैसे पेशेंट अप टू 42 वीक्स इट इज टर्म, है ना. बट जैसे जैसे जो 40 से 42 वीक्स तक क्या बोलेंगे अपन, पोस्ट डेटेड. तो जैसे जैसे पोस्ट डेटेड होती जाती है पेशेंट, तो उसको कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे लाइकर कम होने लग जाता है, बेबी का साइज बड़ा होता है, प्लेसेंटा मैच्योर हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो थोड़ा सा ओलिगोहाइड्रोमनियोस, लाइकर कम है, ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है. बट वी आर हियर टू डिस्कस प्री टर्म लेबर. So preterm labor is defined as regular uterine contraction resulting in changes in the cervix before 37 weeks. So labor क्या है? Uterine contraction and cervical dilatation. So if it occurs before 37 weeks, it is preterm labor. And cervical change में क्या होगा? Cervical dilatation and effacement. Effacement कोई बता सकता है क्या होता है effacement? गायने में पोस्टिंग हो चुकी है ना? What is effacement? Effacement is because when the patient is not in labor, so uterus and the cervix. So cervical length is around 2.5 to 3 centimeters, and in uterus there is upper segment and lower segment. When the labor starts, contraction starts in the upper part, and the lower part starts dilating. When this starts dilating, then the cervical length, cervix becomes shortened. How it is shortened? Because cervical length is taken up into the lower uterine segment. It merges into the lower uterine segment. So how much is the merging? So we can say 50% or 70% or 100% effaced. So fully effaced means in full effacement there is no cervical length will be felt. So whole of the cervical length will be merged into the lower uterine segment. Okay. So what is the incidence of the preterm labor? So overall it is 6 to 10%, and spontaneous means the patient goes in spontaneous labor without any cause, and without any pregnancy complication or the fetal complication, 40 to 50%. PRM, premature rupture of the membrane. Suppose 34 weeks है, आपके मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, तो आप बहुत टाइम तक तो नहीं होगा ना, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो पेशेंट लेबर में चली जाती है ना. या फिर ऑब्स्टेट्रिकली इंडिकेटेड मीन्स सपोज किसी पेशेंट को PIH है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, है ना, 37 हो गई, 36, 34, इतना ज़्यादा BP हो रहा है, इतनी एंटी हाइपरटेंसिव दे दी, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम उसको इंड्यूस कर देते हैं. तो वो जरूर प्री मैच्योर भी हो सकता है ना. या जैसे एक्सीडेंटल हेमरेज है, किसी को ब्लीडिंग है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुक रही है. अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है एक्सीडेंटल हेमरेज में, तो वी हैव टू गो फॉर इंडक्शन. सो दैट मे बी प्री मैच्योर डिलीवरी, है ना. सो दैट इज ऑब्स्टेट्रिकली इंडिकेटेड. सो अकॉर्डिंग टू द WHO, इट इज डिलीवरी बिफोर 37 weeks, and it is again sub categorized in 3 categories. When it is less than 28 weeks, it is extremely preterm, very preterm 28 to 32 weeks, and from 32 to 37 it is moderate to late preterm. All are preterm, but extreme premature or very preterm or late preterm. अब ये 28 से बिलो कब तक मानते हैं? बिकॉज MTP जो है इनिशियली इट वाज अलाउड अप टू 20 weeks, और द प्रीटर्म लेबर हम तभी बोलेंगे जब जो फीटस है वायबल हो. वायबिलिटी मीन्स
the baby is able to survive, not in the abortion range, but after that, so it is after 24 weeks now, because MTP is allowed up to 24 weeks with some clause, and after 24 weeks, if it is, the baby delivers 26 weeks, so that will be counted as preterm delivery. So what are the risk factors? किन किन पेशेंट को प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है ना? तो इफ द पेशेंट हैज प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, अगर किसी को प्रीवियस अबॉर्शंस हैं, देन पेशेंट में गो इनटू प्रीटर्म लेबर, या अगर पेशेंट लो सोशो स्टेटस है, एंटीनेटल केयर नहीं है, पेशेंट ने कुछ मेडिसिन नहीं ली है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कुछ पता नहीं है ना एंटीनेटल विजिट्स हैं, तो उनको हो सकता है, या मैटरनल एज, आ जाओ, या मैटरनल एज बहुत यंग एज है, या फिर बहुत एल्डरली पेशेंट्स है, ठीक है ना, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन है, अगर जो भी ओवर डिस्टेंडेड यूट्रस होगा ना, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है या पॉलीहाइड्रोमनियोस है, तो उसमें देर आर मोर चांसेस ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, है ना, या फिर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन है, PIH है, डायबिटीज़ है ना, तो उस केस में प्रीटर्म लेबर में जा सकते हैं। यूट्राइन कॉजेज किस में होंगे? जब नॉर्मल यूट्रस में तो क्यों होंगे ना, कोई यूट्राइन एनामली होगी, कोई सेप्टेट यूट्रस हो सकता है, या आपके बाइकॉर्डिनेट यूट्रस हो सकता है। बाइकॉर्डिनेट मीन्स डबल यूट्रस, है ना। सेप्टम में क्या होता है? सिंगल यूट्रस विथ अ वॉल इन बिटवीन द सेप्टम। बाइकॉर्डिनेट यूट्रस, टू डिफरेंट कॉर्नुआ, है ना। और if there is cervical incompetence, means cervical tissue is weak, then patient may, as the baby grows, the weight grows, the baby may deliver. The placenta or the fetal causes, if there is intrauterine fetal death, और बेबी को if there is any congenital malformation, है ना, या growth retarded है, तो they may go into preterm labor. Iatrogenic means spontaneous or obstetrically induced. In placenta, if the placenta is abnormally placed, or there is hemorrhage, accidental hemorrhage or placenta previa. There may be infections that cause preterm labor, like bacterial vaginosis, chlamydia, mycoplasma, group B streptococcus. They are mixed infection. Intrauterine there may be ascending infection from the genital tract or through the peritoneal cavity, है ना। ट्रांसप्लेसेंटल हो सकता है, मदर से फीटस को जा सकता है, और आइट्रोजेनिक कोई इन्वेजिव अगर हमने किया है तो उससे भी प्रीटर्म लेबर। कोई भी हम इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं, चाहे वो हम एमनियोसेंटेसिस करें या कोई रोटेशन करें, वर्जन अगर बेबी को अगर मूव करते हैं, तो उसमें देर आर मोर चांसेस हो कि मेम्ब्रेन रप्चर हो और प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। एक्स्ट्रा यूट्राइन कोई इन्फेक्शन हो, जैसे UTI है ना, UTI है, पाइलोनेफ्राइटिस, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया, मलेरिया, ये अगर क्रोनिक मलेरिया है तो दे कैन कॉज प्रीटर्म लेबर। सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगता है कि प्रीटर्म लेबर में जा रही है ना। पेशेंट को क्या है, पेन तो किसी को भी हो सकता है, यूट्राइन पेन हो सकता है, या और कोई भी कॉज हो सकता है ना। सो देयर शुड बी रेगुलर फ्रिक्वेंट फीलिंग ऑफ द एब्डोमिनल टाइटनिंग, कि पेट टाइट हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेट टाइट हो रहा है ना। डल लो बैक एक हो रहा है, फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द पेल्विस और द लोअर एब्डोमेन, ऐसा लग रहा है कि कुछ नीचे आ रहा है, प्रेशर, है ना। कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, यूट्रस टाइट हो रहा है, प्रेशर आ रहे हैं नीचे, और क्रैम्प्स आ सकते हैं एब्डोमेन में। आ जाओ, कहाँ से आ रहे हो घूमते घूमते? तो कैसे आए? अच्छा चलो, खाना लेट मिला था तुमको, चलो चलो। या फिर अगर लेबर में जा रही है क्योंकि सर्वाइकल डायलिटेशन हो रहा है, तो देयर में बी सम स्पॉटिंग और द ब्लीडिंग, जिसको कि हम शो बोलते हैं ना। अ गश और एन ऑनगोइंग ट्रिकल ऑफ द फ्लूइड, या मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई है, देन आपको प्रीटर्म लेबर में जा सकती है। फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना इज वाटरी, इट मे बी वाटरी, क्लियर, और ब्लड स्टेन्ड if there is bleeding inside the amniotic sac, so it will be blood stained or with mucus, so that will be show along with the slight bleeding. Established preterm labor means a woman is in the established preterm labor if she has progressive cervical dilatation from 4 centimeter
मीन्स 4 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया है और उसको रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब प्रीटर्म लेबर में है, वो एस्टेब्लिश हो गया है ना। सस्पेक्टेड किसको बोलेंगे? इफ शी हैज रिपोर्टेड सिम्टम्स ऑफ द प्रीटर्म लेबर, मतलब सिम्टम्स तो आ रहे हैं उसको ऐसे, एंड हैज हैड ए क्लिनिकल असेसमेंट, जैसे कि हमने पीएस पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया या पीवी एग्जामिनेशन में किया, तो उसमें लग रहा है कि प्रीटर्म लेबर में तो जा रही है, बट एस्टेब्लिश मीन्स इतना ज़्यादा डायलेटेशन नहीं है, सपोज हो सकता है 1 सेंटीमीटर डायलेटेड हो, 2 सेंटीमीटर डायलेटेड हो, तो वो सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर में जा सकती है, ठीक है। डायग्नोज प्रीटर्म लेबर क्या होता है? इफ शी इज इन सस्पेक्टेड प्रीटर्म लेबर, है ना, कि उसको हो सकता है, जैसे सिम्टम्स के हिसाब से अपन कह सकते हैं ना कि पेशेंट लेबर में है, प्रीटर्म लेबर में, एंड हैज हैड पॉजिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्रीटर्म लेबर, मीन्स आपने देख लिया कि अंदर से क्या आ रहा है, लाइकर आ रहा है, म्यूकस आ रहा है, वो उससे साथ, है ना, तो उसमें अगर आपके पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब डायग्नोज है। प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, प्रीटर्म एंड प्री लेबर, प्रीटर्म तो हो गया आपका लेस देन 37 वीक्स, और प्री लेबर उसको बोलते हैं कि अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई एंड द लेबर डजंट स्टार्ट विद इन 24 आवर्स, तो दैट इज मीन प्रीटर्म। प्रीटर्म प्री लेबर, क्योंकि टर्म पे भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि पेशेंट को पहले लेबर में कॉन्ट्रैक्शन आए, बट उसको लाइकर भी जा सकता है ना, लीकिंग भी हो सकती है, तो अगर उसको विद इन 24 आवर्स लेबर एस्टेब्लिश हो जाता है, पेशेंट लेबर में चली जाती है, सो दैट विल नॉट बी एज ए PROM, बट if the labor doesn't start, it is pre-labor, and if it is less than 37 weeks, the preterm। आपको क्या प्रॉब्लम है? खड़े हो जाओ, पिंक क्रॉस चेक, तुम सेकंड नंबर, तुम्हारे पास वाला, तुम खड़े हो जाओ, और तुम तीनों, तुम भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तुम तीनों, तुम भी खड़े हो, गेट आउट, गेट आउट, यहाँ को तमाशे करने नहीं आते हम, फिर एग्जाम में प्लेसेंटा को फीटस बताते हो, देखते हो ना तुम्हारी क्या हालत होती है, यहाँ गप्पे लगानी होती है, अगर नहीं पढ़ना है तो मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है। तुम कहाँ से घूमते घूमते आ रहे हो? बाहर बाहर, गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। और किसी को भी जाना तो जा सकता है, कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाई में तो जा सकता है। सो रेस्क्यू सर्वाइकल सर्कलाज, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। रेस्क्यू सर्वाइकल सर्कलाज, इट इज परफॉर्म्ड एज एन रेस्क्यू, मीन्स एक तरह से इमरजेंसी रेस्क्यू करना किसी को, है ना। सो इट इज एज एन इमरजेंसी प्रोसीजर इन विच वुमेन विथ प्रीमैच्योर सर्वाइकल डायलेटेशन एंड ऑफन विथ एक्सपोज फीटल मेम्ब्रेन। अब पेशेंट मीन्स किन केसेस में करेंगे? अगर पेशेंट कोई मल्टी है, 3-4 बच्चे हैं, उसको लग रहा है अबॉर्ट भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन कई बार होता है प्रेशियस प्रेगनेंसी है, सपोज IVF प्रेगनेंसी है, उसको बहुत प्रोलॉन्ग ईयर्स के बाद में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद में कंसीव किया, पर अगर वो लेबर में चली गई, है ना, तो वी हैव टू सेव द फीटस, है ना। तो आपने देखा कि सर्वाइकल डायलिटेशन हो गया है ना थोड़ा बहुत, और मेम्ब्रेन भी बल्ज होने लग गई है, वो कि लेबर का साइन होता है ना। तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम? रेस्क्यू सर्वाइकल सर्कलाज, है ना, सर्विक्स के चारों तरफ स्टिच लगा देते हैं, पेशेंट को फुट एंड रेस करके करते हैं ऐसे केस में, है ना, क्योंकि अब अगर आपने सूचर लिया तो मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है ना, है ना। तो पेशेंट को फुट एंड रेस करा के उसको मेम्ब्रेन को अंदर स्पंज होल्डर से गॉज डाल के मेम्ब्रेन को अंदर रख के फिर सूचर ले लेते हैं, और जब क्लोज करते हैं तो फिर उसको निकाल देते हैं। लेकिन इसमें पेशेंट की काउंसलिंग तो जरूरी है, क्योंकि उसके बाद में भी लेबर में जा सकती है पेशेंट, ठीक है। सो व्हाट इज पैथोजेनेसिस, क्या है इसमें, क्या ऐसा क्या हो जाता है ना। 80% ऑफ द प्रीटर्म बर्थ आर स्पॉन्टेनियस, उनमें कुछ कारण ही नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं, ना कोई इन्फेक्शन ना कोई कुछ। 30% प्रीटर्म में रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना। तो काफी सारे केसेस जो प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बाद में डिलीवर हो जाते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है ना, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द मैटरनल और फीटल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, क्योंकि जब भी जैसे लेबर में होता है ना, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एड्रिनल एक्सिस ये सारा, है ना, तो ये जब एक्टिवेट होता है तो लेबर स्टार्ट होता है। इसी तरह से इसमें प्री मैच्योर एक्टिवेशन हो जाता है ना, या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या अंदर कोई हेमरेज हो सकता है, डेसिडो में अंदर मसल्स में ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर कोई ओवर डिस्टेंडेड जैसे पैथोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक्सेस लाइकर है उसका, है ना,
तो जो नॉर्मल लाइकर होता है वो अपना 5 to 15 के 18 के करीब होता है। अगर किसी का 25-30 है मीन्स बहुत ज़्यादा ओवर डिस्टेंडेड है ना, तो उसमें यूट्राइन इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में गो इनटू प्रीटर्म लेबर। ठीक है, तो प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कि किसको होगी? एक तो हिस्ट्री से, कि उसके हिस्ट्री है या तो प्रीटर्म लेबर की, अबॉर्शन की हिस्ट्री है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसके ब्लीडिंग रही थी पहले या पहले उसके प्री मैच्योर रप्चर होके वो हुए हैं, तो एक तो थोड़ी सी हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है, तो अपन उसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखते हैं। दूसरा मैकेनिकल, आप देख सकते हो कि भाई क्या उसकी फाइंडिंग है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसको कितने आ रहे हैं, है ना, अगर मोर देन 4 है पर आवर तो वो सिग्निफिकेंट है। बायोकेमिकल में हम क्या करेंगे टेस्ट, फीटल फाइब्रोनेक्टिन बिटवीन 24 to 34 वीक्स, है ना, तो बट बिफोर 22 वीक्स एंड आफ्टर 37 वीक्स इट इज़ नॉर्मली फाउंड। मतलब ये जो केमिकल है फीटल फाइब्रोनेक्टिन, तो ये बिफोर 22 वीक्स और आफ्टर 37 वीक्स, मतलब प्रीटर्म वाली रेंज में ये नहीं होता है ना, 37 के बाद में होता है ना, वेजाइनल सिक्रीशंस में, या फिर 22 से पहले होता है। तो इस बीच में मीन्स आपका ये 24 से 34 वीक्स तक अगर हम इसको टेस्ट करें और इफ इट कम्स पॉजिटिव, सो इट इज प्रिडिक्टिव ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी विद इन 7 डेज, कि पेशेंट को 7 डेज डिलीवरी पेशेंट लेबर में जा सकती है ना। या फिर अल्ट्रासाउंड होता है, कई बार अल्ट्रासाउंड में सर्वाइकल लेंथ हम देखते हैं, इन जैसे कि स्पेशली जिनके पहले हिस्ट्री है प्रीटर्म लेबर की या कुछ बेड ओएस कुछ है, उसको कुछ ऐसा प्रेशर जैसा लगता है। कई बार प्रीटर्म 5 मंथ से भी पेशेंट कहते हैं मेरे को नीचे प्रेशर लगता है या ऐसा, है ना। सो इफ द पेशेंट इज हैविंग सम सिम्टम्स, तो हम वी एडवाइज द सोनोलॉजिस्ट टू डू सर्वाइकल लेंथ, है ना। तो सर्वाइकल लेंथ कैसे होती है, तो इफ इट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर दैट इज शॉर्टन सर्विक्स मीन्स, so in that case we can apply some suture, you know, os tightening we can do. So the os tightening is in this case sonographically indicated, you know, because cervical shortening is there, so we have to do some tightening. So what is fetal fibronectin testing? It is a glycoprotein in the amnion, decidua and the cytotrophoblast, means जो membrane होती है fetal membrane, उसमें कहाँ से लेते हैं, posterior fornix of the vagina से जो भी सिक्रीशंस आ रहे हैं ना वहाँ से। तो किस किस में लेंगे हम, एक तो सिम्टोमेटिक अगर है ना, इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन रप्चर होने के बाद में तो कुछ नहीं करना है ना, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। सर्वाइकल डायलेटेशन लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो आप कर लेंगे, मीन्स अगर 4 है फिर तो लेबर में जाएगी, फिर तो कोई आपको मतलब ही नहीं। मतलब ये उस केस में कर रहे हैं ना कि अपन अगर प्रिडिक्ट कर सकें कि किसी पेशेंट को, इफ द पेशेंट इज ससेप्टेबल टू गो इनटू प्रीटर्म लेबर, सो वी कैन do some management to prevent preterm delivery. कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं करना है, या तो लेबर में चली गई है या बहुत ब्लीडिंग हो रही है या पहले से ही अगर उसका सर्वाइकल स्टिच लगा हुआ है तो फिर उसमें नहीं करेंगे, है ना। सो कितनी वैल्यू आती है इसकी, ये जो सिक्रीशन से लेंगे ना पोस्टीरियर फॉर्निक्स से, तो इसको सैंपल के लिए भेजते हैं। फीटल फाइब्रोनेक्टिन लेवल इफ इट इज मोर देन 50 नैनोग्राम पर ml, तो there is increased risk of the preterm labor within 2 weeks. So this is sonographic assessment. इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, ये जो दिख रही है ना, इसमें कर्सर लगेगा, ये जो दिख रही है ना लाइन जिसमें स्टार लगे हुए हैं, है ना, ये तो ब्लैक है, वो व्हाइट में दिख रहा है, दैट इज सर्वाइकल लेंथ। कैसे बताऊँ इसमें, अब मुझे इसमें कर्सर नहीं आ रहा, चलो ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आया, दिस वन, ये दिख रहा है, यहाँ पे 2, दिस है सर्वाइकल लेंथ, है ना। तो सोनोग्राफी से वी मेजर दिस, इफ इट इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर वी विल गो फॉर सर्वाइकल टाइटनिंग। सो अपने को रिस्क अगर पता लग गई है कि हिस्ट्री से भी आ रहा है या सर्वाइकल लेंथ है या फीटल फाइब्रोनेक्टिन आ रहा है, तो फिर अपने को इसका मतलब सस्पेक्टेड है ना। तो अब कैसे करेंगे, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। प्राइमरी एम इज टू लोअर द प्रेवलेंस ऑफ प्रीमेच्योर लेबर बाय इंप्रूविंग मैटरनल हेल्थ इन जनरल एंड बाय अवॉइडिंग रिस्क फैक्टर्स बिफोर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जो हमें कॉजेज है ना कि मैटरनल कॉजेज हैं, फीटल का तो अगर IUGR है वो तो हम नहीं कर सकते, बट मैटरनल जो फैक्टर्स हैं अपन उनको कर सकते हैं ना, कि एनीमिक ना हो,
अच्छी डाइट हो, रेगुलर चेकअप हो, उसका सोनोग्राफी हो, है ना, सारी वो चीज़ें अपन पहले से ही अपन उसको कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं कि अगर एनीमिक है तो अपन आप हीमोग्लोबिन ब्लड लगा सकते हो, इंजेक्शन लगा सकते हो, हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हो, यूट्राइन रिलैक्सेंट दे सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से स्मोकिंग है तो स्मोकिंग सिजेशन है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करेंगे। और ज़्यादा स्ट्रेसफुल, कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत हैवी वर्कर होती है, जैसे आप सुबह 8 बजे गए, रात को 8 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत हैवी स्ट्रेनियस वर्क है, तो उन पेशेंट्स को हम वी आस्क देम टू अवॉइड द स्ट्रेनियस वर्क, और या फिर अपना जॉब चेंज कर ला या छुट्टी ले लो आप, या ड्यूटी आवर्स कम करा लो, तो वो उस हिसाब से। उसके बाद में आइडेंटिफाई द प्रेग्नेंट वुमेन एट रिस्क, है ना, एंड हेल्प देम टू कैरी देयर प्रेगनेंसी टू टर्म, कि भाई कुछ ऐसा करें कि वो थोड़ा सस्पेक्टेड है तो टर्म तक चली जाए, है ना, आफ्टर 37 वीक्स तक कंटिन्यू हो जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, सर्वाइकल लेंथ मेजरमेंट हमने कर ली, है ना, और सर्वाइकल सर्कलाज कर सकते हैं। उससे क्या होता है, सर्कल लगा के ऊपर ऊपर, इसमें हम सर्वाइकल कैनाल में नहीं जाते, है ना, ऊपर ऊपर से सर्वाइकल टिश्यू में से पर्स स्ट्रिंग लेके और नॉट लगा देते तो ऑस क्लोज हो जाता है ना। या फिर प्रोजेस्ट्रॉन सप्लीमेंट दे देते हैं, है ना। प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है, इट इज ए टोकोलिटिक, प्रोजेस्ट्रॉन इज ए हार्मोन ऑफ द प्रेगनेंसी, बट इट इज ऑल्सो टोकोलिटिक, बिकॉज जिन पेशेंट्स में प्रोजेस्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है उन पेशेंट में या तो ब्लीडिंग हो जाएगी या लेबर में जा सकती है पेशेंट, है ना। और उसके बाद भी अगर सपोज सब कुछ करने के बाद भी अगर पेशेंट डिलीवर हो रही है ना, तो वी हैव टू केयर फॉर द प्रीटर्म बेबी, है ना। तो आपके यहाँ न्यूबॉर्न नर्सरी की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को प्रीटर्म अगर डिलीवरी हो रही है तो अपन उसको क्या क्या मेजर कर सकते हैं कि उसकी मॉर्बिडिटी कम हो, है ना। तो काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। जब भी पेशेंट प्रीटर्म लेबर में होती है तो आप काउंसिल करोगे कि आपकी डिलीवरी अब होगी, है ना, क्योंकि अगर आपको लग रहा है नहीं अभी ये होगी, लेबर में जाएगी, तो प्रीटर्म डिलीवरी होगी, तो प्रीटर्म डिलीवरी होगी तो आप नर्सरी में रहना पड़ेगा, तो नर्सरी में कितना खर्चा होगा, क्या है, कितने टाइम रहना पड़ेगा, है ना, वो सारी काउंसलिंग आप करोगे। फिर ट्रीटमेंट करना है, अब लेबर में जा रही है पेशेंट, है ना, तो इनिबिशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विद टोकोलिटिक्स, कॉन्ट्रैक्शन को रोकेंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे टू इंड्यूस फीटल लंग मैच्योरेशन। सपोज अगर आपने ट्राई भी किया टोकोलिटिक्स से लेकिन फिर भी पेशेंट लेबर में चली गई, तो वी गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड, है ना, आइदर बीटामिथासोन और डेक्सामिथासोन टू द मदर फॉर फीटल लंग मैच्योरिटी, है ना। तो वो दे सकते हैं। अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी एंटीबायोटिक दे देंगे, बेड रेस्ट करा जाए। ऑल्दो जो स्टडीज़ हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट से आपको प्रीटर्म डिलीवरी होगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस वर्क कर रही है, बहुत हैवी वर्क है, उसको पेशेंट बहुत एक्सर्शन है, देन रेस्ट में हेल्प है। कोई सर्जिकल मैनेजमेंट मीन्स जो टाइटनिंग करते हैं, इंट्रापार्टम मैनेजमेंट, है ना। टोकोलिसिस, द एम इज टू सप्रेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिले द प्रीटर्म डिलीवरी। तो टोकोलिटिक्स कब देते हैं हम, या तो देर आर टू रीजन्स। इफ द पेशेंट इज एट द पेरीफेरी, अब उनको लग रहा है, पेरीफेरी वालों ने देखा कि अब तो तुम्हारी डिलीवरी होगी, है ना, तो वो जब तक कि वो ट्रांसफर करें आपको हायर सेंटर पे, तो वो टोकोलिटिक दे देते हैं। या फिर आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाने, अब डिलीवर होने वाली है तो अब स्टेरॉइड भी तो लगाना है, नहीं तो फिर जब अगर आपने स्टेरॉइड नहीं लगाया, फीटल लंग मैच्योर नहीं है ना। तो टू रीजन, है ना, वन इज फॉर द ट्रांसफर और सेकेंड इज द टू एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है विद इन 24 आवर्स में 2 डोज लगाते हैं हम, तो एटलीस्ट इतना डिले हो जाए कि उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड लग जाए, है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में नहीं करना है ना। अगर पेशेंट एस्टेब्लिश लेबर में है, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन है, आईयूडी हो गया है, तो नहीं करोगे ना। या कंजेनिटली माल फाउंड बच्चा है और आप लेबर में जा रही है, तो फिर आप क्यों रोकोगे उसको, है ना। और फीटल डिस्ट्रेस है या कंप्रोमाइज है ना। और कोई इन्फेक्शन हो गया, अगर कोरियोमेम्ब्रेनाइटिस हो गया, जैसे सपोज मेम्ब्रेन PROM है ना, मेम्ब्रेन रप्चर है, तो कई बार आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हो, क्योंकि अगर मेम्ब्रेन फ्लैट है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है, देन वी हैव टू इंड्यूस, है ना, बट स्टिल वी गिव टोकोलिटिक्स टू गिव एंटीबायोटिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, है ना, अगर आपके यहाँ पर भी है पेशेंट, ठीक है ना। लेकिन कई बार आपने ध्यान नहीं दिया, क्या है, चलने दो, तो
इन्फेक्शन हो सकता है, तो अंदर कोरियोएमनोनाइटिस हो सकता है ना। तो कोरियोएमनोनाइटिस कैसे डायग्नोस करोगे? अंदर जो फीटल मेम्ब्रेन्स है ना, उसमें इन्फेक्शन हो गया है। हाउ विल यू डायग्नोस? कैसे पता लगेगा? अगर कहीं ऑर्गन में इन्फेक्शन है कैसे पता लगता है? सेप्सिस है तो कैसे पता लगेगा? जनरल फिजिकल में कुछ पता लगेगा? कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? फीवर हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है ना, बीपी लो हो सकता है। ठीक है, फिर लोकल पे आ जाओ, तो आप जब यूट्रस पे हैंड रखोगे तो टेंडरनेस होगी, है ना, क्योंकि अंदर इन्फेक्शन है, यूट्रस पे टेंडरनेस है। देन देयर में बी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। सो दीज आर ऑल साइंस ऑफ कोरियोएमनोनाइटिस। तो अगर वो है तो फिर आप नहीं करोगे ना उसको। रिलेटिव मल्टीपल प्रेगनेंसी है, प्री एक्लेंसिया बहुत ज़्यादा बीपी है, अब लेबर में जा रही है, तो आप नहीं रोकोगे। प्लेसेंटा प्रीविया है ना, जो अगर माइनर डिग्री का प्लेसेंटा प्रीविया है देन वी अलाउ द पेशेंट टू गो इनटू लेबर। अगर मेजर डिग्री का मीन्स कवरिंग ऑस है या ऐसा, तो फिर नहीं करोगे। तो कौन कौन सी टोकोलिटिक्स ड्रग दे सकते हैं, है ना? कैल्शियम एंटागोनिस्ट है, दैट इज निफेडिपिन, है ना। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, दैट इज एटोसिबान। इनहिबिशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इंडोमेथासिन। नाइट्रस ऑक्साइड डोनर, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन एंड बीटा माइमेटिक, टर्बुटेलिन एंड द रिट्रोडिन एंड द मैग्नीशियम सल्फेट लास्टली। दीज आर ऑल टोकोलिटिक्स, है ना। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होती है निफेडिपिन, जो निकार्डिया आप देखते हो कई बार लेबर में, है ना, तो निफेडिपिन और द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना। तो ये कैल्शियम की एंट्री रोकती है, तो कॉन्ट्रेक्शन भी इनहिबिट होता है ना। तो डोज वोज से आपको ज़्यादा इतना याद नहीं रहेगा, है ना। किसमें नहीं देना? अगर कोई कार्डियक डिजीज़ है, क्योंकि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो वेजोडायलेटेशन करती है, तो कार्डियक डिजीज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। मदर को पहले से हाइपोटेंशन हो, है ना। तो ये जो निफेडिपिन है, इट इज़ टोकोलिटिक एज वेल एज एंटी हाइपरटेंसिव, है ना। तो दोनों एक्शन होते हैं इसके, ठीक है। और अगर दिया हाइपोटेंशन तो फ्लैशिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, है ना। कई बार फिटल डिस्ट्रेस में जा सकती है या फिटल डेथ हो सकती है। तो आप लोगों को नाम ही याद रहेंगे तो बहुत है ना। अटोसिबान, अटोसिबान ये तो मसल फाइबर, जो बाकी टोकोलिटिक्स है ना, दे अफेक्ट द मसल फाइबर, है ना, स्मूथ मसल को रिलैक्स करते। बट ये जो एटोसिबान है, इट इज ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्शन होने के लिए देयर शुड बी ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, है ना। द ऑक्सीटोसिन एक्ट थ्रू दिस रिसेप्टर्स, है ना। तो ये जो एटोसिबान है, इट एक्ट्स अगेंस्ट दिस रिसेप्टर, है ना। इट इज ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। ये अवेलेबल है, अपने यहाँ पे लगाते हैं कई बार, है ना। इसकी एक्चुअली डोज तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। अगर अपन पूरा डोज लगाएं तो अराउंड 45,000, तो कई बार एक सिंगल डोज भी लगा सकते हैं ना। तो इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप लगा सकते हो। अगर प्रीटर्म लेबर में है, बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं है। मैटरनल में कई बार, जैसे कि किसी भी ड्रग से हो सकता है, तो इससे भी एलर्जी हो सकती है या हेडेक वगैरह हो सकता है। तो इट इज़ ए वेरी गुड ड्रग टू प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर। एंड इंडोमिथासिन ये है, लेकिन क्लिनिकली देते नहीं हैं इसको। इंडोमिथासिन इसको ओरल दे सकते हैं 50 मिलीग्राम रेक्टली, और ओरली भी दे सकते हैं, है ना। बट इसके साइड इफेक्ट क्या ज़्यादा रहते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस आर्टीरियोसस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ओलिगोहाइड्रोनियस, हाइपरबिलीरुबिनेमिया, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस। तो इसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, बट अगर कोई चीज़ से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो आपको एक ऑप्शन है ये, बट यूजुअली क्लिनिकली नहीं करते, है ना। तो नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर, ये जो होता है पैच होता है, या कई बार हर 12 आवर्स में लगा सकते हैं जब तक कि आपका कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, तो ये आपका पैच लगा सकते हैं, है ना। तो इससे भी हेडेक, हाइपोटेंशन वगैरह हो सकते हैं। बीटा माइमेटिक जो क्या होते हैं ये, बीटा ब्लॉकर या अल्फा ब्लॉकर वगैरह उससे करते हैं, उससे रिलैक्स करते हैं। सो दे रिड्यूसेस इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम एंड कॉजेज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन बाय बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन, है ना। जो एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं ना, वो ब्लॉकर होते हैं, ये एगोनिस्ट होते हैं, है ना। जैसे उसमें बीटा ब्लॉकर जो एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं, बट दे आर बीटा एगोनिस्ट, है ना। ये टर्बुटेलिन होता है, आइसोक्सुप्रिन होता है, रिटोड्रिन होता है ना। ये इसी ग्रुप की ड्रग है। बट इसमें कई बार ये होता है कि पल्मोनरी इडिमा चले जाते हैं। अगर
इसको अगर डायरेक्ट हम आईवी दे दें, है ना, इसके कैप्सूल आते हैं, टैबलेट आती है, कैप्सूल आते हैं, और आईवी आते हैं जिसको कि वी हैव टू गिव इन द इन्फ्यूज़न। बट अगर आपने इसको डायरेक्ट लगा दिया आईवी तो पेशेंट पल्मोनरी एडिमा चले जा सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो ये आजकल थोड़ी सी कम प्रेफर होती है ड्रग, है ना। मैग्नीशियम सल्फेट, इट इज अगेन टू एक्शन, इट इज टोकोलिटिक, है ना, और इसको आजकल न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए भी देते हैं बेबी। जब अगर आपको लग रहा है कि डिलीवरी होने वाली है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, है ना, हर चीज़ को आप नहीं कर सकते। तो आप अगर आपको लग रहा है कि विद इन 24 आवर्स ये डिलीवर हो जाएगी पेशेंट, तो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, जो कि अपन किस में देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट किस में देते हैं? एक्लेम्सिया में। एक्लेम्सिया या प्रोफाइलेक्टिक सीवियर प्री एक्लेम्सिया लग रहा है फिट आ जाएंगे तो उस पर दे सकते हैं। या फिर प्रीटर्म डिलीवरी है तो हम मदर को डोज सेम ही रहती है उसकी, जो अपन उसमें देते हैं एक्लेम्सिया में, है ना। लोडिंग डोज 4 ग्राम, स्लो बोलस ओवर 15-30 मिनट, और मेंटेनेंस डोज इसमें उसमें आईएम भी लगा सकते हैं, है ना। 4 आपने वैसे लगा दी आईवी, और 5 बटक्स में लगा दी, तो 14 की डोज होती है एक्लेम्सिया में। बट इसमें जो मेंटेनेंस डोज है वो अपन देते हैं आईवी, है ना, 1 ग्राम पर आवर फॉर 24 आवर्स, और जब तक ही बर्थ हो जाए। अगर बर्थ ही हो गया तो फिर आपको बंदी करनी, नहीं तो फिर 24 आवर्स तक दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सेम वही मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो सकती है ना। तो अपन क्या यूरिन आउटपुट देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, और पटेलर रिफ्लेक्स देते हैं। तो अगर ये है इसका मतलब टॉक्सिसिटी है अगर, है ना। प्रोजेस्टेरोन, जैसे कि मैंने बताया, इट मेंटेन्स यूट्राइन क्वेश्चन बाय ऑल्टरिंग द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द स्मूथ मसल, तो उनको रिलैक्स करता है। तो प्रेगनेंसी का हार्मोन भी वही है ना। जब ईस्ट्रोजन आ जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम कर सकता है। तो प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो उनमें हम प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। इट सप्रेसेस मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बाय इंटरफेयरिंग विद द कैल्शियम कैल्मोडिलिन मायोसिन लाइट चेन काइनेस सिस्टम, ये इसके थ्रू एक्ट करता है ये, है ना, प्रोजेस्टेरोन, एंड रिड्यूसेस कैल्शियम इनफ्लक्स। अब कैल्शियम नहीं आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। प्रिवेंट सर्वाइकल चेंजेस, है ना, जो सर्वाइकल चेंजेस हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। तो इसीलिए अगर कई बार जैसे सपोज आपके पास 28 वीक्स पे आई है प्रीटर्म लेबर करके और सर्वाइकल शॉर्टनिंग है ना, तो आप क्या है ट्रीटमेंट उसका? ऑस टाइटनिंग, है ना, जो अपन मैकडोनल्ड सूचर लगाते हैं। बट अगर 28 वीक्स पे लगाओगे तो देयर आर मोर चांसेस कि पेशेंट प्रीटर्म लेबर में चली जाए इरिटेबिलिटी से और उसको हो जाए। तो इन दीज केसेस में वी कैन गिव प्रोजेस्टेरोन टू दिस पेशेंट, है ना, वी कैन गिव ओरली और द वेजाइनली, है ना। इट ऑल्सो रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन द सर्विक्स, है ना। तो इन्फ्लेमेशन इंड्यूस जो वीकनिंग होती है उसको भी प्रिवेंट करता है। डोज कैसे हो सकती है इसकी? ये माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरोन हो सकता है 200 मिलीग्राम, या वेजाइनल दे सकते हैं। एक इंजेक्टेबल भी आता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैपरेट, है ना, 250 या 500 मिलीग्राम का आता है, ये इंजेक्टेबल होता है ना। तो ये आप इंट्रामस्कुलरली वीकली दे सकते हो, ठीक है ना। बार बार पेशेंट कई बार कहती मैं ओरल नहीं खा सकती, तो उसको वीकली दे सकते हो, है ना। या फिर कई बार प्रोफाइलेक्टिक भी अपने को देनी होती है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोफाइलेक्टिक सर्कलाज भी करनी होती है। किन केसेस में? मतलब अपने को पहले से ही कि हमको करनी है ना। ये प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ और मिड ट्राइमेस्टर लॉस ऑफ 16 to 34 वीक्स, मतलब पहले भी उसके मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन हो गए, है ना, तो फिर आप उसको प्रोफाइलेक्टिक वो कर दोगे और प्रोजेस्टेरोन भी दे दोगे। और या फिर अभी उसकी आपने फिर कराई सोनोग्राफी तो वो लेस देन 2.5 आ रही है, तो आप उसको प्रोफाइलेक्टिक सर्कलाज और प्रोजेस्टेरोन करोगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मैंने बताया, दे एनहांसेस फीटल लंग मैच्योरिटी, है ना, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर आपने नहीं दिया, सपोज टाइम ही नहीं मिला ना, 4-5 सेंटीमीटर में आपने लगाया तो सही एक स्टेरॉइड, बट वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो इन बच्चों को प्रीटर्म को फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है अंदर। तो फिर क्या लगाते हैं अगर नर्सरी में डिस्ट्रेस हो रहा है बच्चे को? तो प्रीटर्म बच्चा है, कुछ देते हैं ट्यूब से, सर्फेक्टेंट होता है ना, सर्फेक्टेंट। इसमें क्या होता है कि लंग्स जो होते हैं ना ऐसे चिपके हुए रहते हैं, अदरवाइज तो लंग्स डिस्टेंडेड रहते हैं ना। तो क्योंकि इसमें सर्फेक्टेंट नहीं होता प्रीटर्म में, तो वो सर्फेक्टेंट देते हैं ट्यूब से या ओरली स्प्रे से, तो फिर वो लंग डायलेट होते हैं, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम होता है उनका। 2 डोजेस देते हैं 24 आवर्स अपार्ट। बीटामेथासोन दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। और सपोज आपने ये लगा दिए, है ना, और उसकी प्रीटर्म डिलीवरी हुई नहीं अभी,
2-3 हफ्ते हो गए वो चल रहा है, आपने जो टोकोलिटिक्स वगैरह दिए हैं कुछ कुछ, उससे कंटिन्यू हो रही है प्रेगनेंसी, तो WHO recommend a single repeat dose of the corticosteroid if preterm labor does not occur within 7 days after the initial dose. अगर आपको लग रहा है और ज़्यादा खींच गई है लेकिन फिर भी उसको रिस्क तो है ये प्रीटर्म की, तो आप सिंगल डोज एक और लगा सकते हो। अगर इन्फेक्शन आपको लग रहा है ना, तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हो। PRM है, अगर उसमें आप है प्रोफाइल अब कंजर्वेटिव चला रहे हो तो एंटीबायोटिक दोगे, और या फिर कोई इन्फेक्शन आपको लग रहा है, UTI है, वेजिनाइटिस है ना, तो उसमें आप दे सकते हो। फीटल मॉनिटरिंग कैसे करोगे? प्रीटर्म लेबर में है तो आप उसकी फीटल हार्ट मॉनिटर करोगे, या तो कंटिन्यूस कर सकते हो या इंटरमिटेंट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि फीटस कितना रिस्क पे है या मदर को क्या कंडीशन है। मदर को मतलब बहुत ज़्यादा BP है और आप फीटल मॉनिटरिंग कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूस भी करनी पड़ सकती है, और यू कैन गो फॉर इंटरमिटेंट, बीच बीच में आप फीटल हार्ट सुन सकते हो, या फिर कार्डियोटोकोग्राफी मशीन, CTG मशीन है अपने लेबर रूम में, है ना, तो उससे भी मॉनिटर कर सकते हो। और कई बार जैसे अगर आपके पास CTG भी नहीं है और आपको लग रहा है कि स्ट्रेस से, कई बार क्या क्या स्ट्रेस जो होता है ना, इट इज़ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है ना। आपने सुनी, आपको तो सही आ रही है, मैंने सुनी, मुझे तो नहीं आ रही, है ना, तो वो ऑब्जर्वर डिफरेंस रहता है। तो फॉरेन वगैरह में, अपने यहाँ पर तो नहीं हो सकता है ये, और बड़ी जगह पे कर सकते हैं। तो फीटल स्कैल्प इलेक्ट्रोड है ना, तो लेकिन उसमें मेम्ब्रेन रप्चर होनी चाहिए, तो वो फीटल स्कैल्प पे ना इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और उससे फिर मॉनिटरिंग करते हैं, पर अपने यहाँ पे रूटीनली नहीं करते ऐसा। अब लेबर में चली गई है ना, तो लेबर में चली गई तो अब क्या करोगे, है ना। तो फर्स्ट स्टेज मीन्स सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होता है, कितना? फर्स्ट स्टेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑस क्लोज से 10 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, दैट इज फर्स्ट स्टेज। तो अब उसमें क्या करेंगे हम, पेशेंट इज पुट टू बेड टू प्रिवेंट अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना, रप्चर ना हो जाए तो बेड रेस्ट करा देते हैं। फीटल ऑक्सीजनेशन बाय गिविंग ऑक्सीजन टू द मदर बाय मास्क, अगर उसको लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा बेबी है तो आप ऑक्सीजन भी दे सकते हो मदर को। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो है दैट इज फॉर द पेनलेस लेबर, जो कहते हैं ना पेनलेस लेबर होता है क्या, है ना, तो पेनलेस लेबर क्या होता है, ये इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को पेन नहीं है तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लगाते हैं उसको, है ना, दैट इज पेनलेस लेबर, है ना। तो रूटीन में हम नहीं लगाते, पर हाँ ये जैसे उसके हिसाब से। लेबर शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड, है ना, आपने मॉनिटरिंग कर रहे हो फीटल हार्ट की। सीजेरियन डिलीवरी इज डन फॉर ऑब्स्टेटिक रीजन ओनली, जैसे आपको लग रहा है कि BP कंट्रोल नहीं हो रहा है, या ब्लीडिंग वो नहीं हो रही है, या फिट आने वाला है उसको, है ना, या ओब्लिक लाई में है, ट्रांसवर्स लाई में है, मतलब ऑब्स्टेटिकली इंडिकेटेड अगर है तो फिर आप फर्स्ट स्टेज में भी उसको लेबर में नहीं जाने दोगे ना, फर्स्ट स्टेज में उसका सिजेरियन कर दोगे, ठीक है। फिर सेकंड स्टेज मीन्स अब डायलिटेशन हो गया पूरा, तो बर्थ शुड बी जेंटल एंड स्लो टू अवॉइड रैपिड कंप्रेशन डिकम्प्रेशन ऑफ द हेड, क्योंकि डिलीवरी है, प्रीटर्म है ना, तो प्रीटर्म बेबी का हेड भी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो आप एकदम बहुत जल्दी नहीं, तो स्लो डिलीवरी आप करवाओगे, है ना। एपिजियोटमी दे दोगे ताकि कंप्रेशन नहीं, अगर एपिजियोटमी नहीं दी, टाइट है पेरिनियम, है ना, तो बेबी आया इतना प्री मैच्योर हेड उसका आया और एकदम से फिर रिलैक्स हुआ, तो देर आर चांसेस ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, तो इसलिए एपिजियोटमी देनी है और स्लो डिलीवरी करानी है। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो फिर आप या तो फोर्सेप लगा सकते हो, ठीक है ना, और रूटीन में नहीं लगानी है, बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, आपको डिस्ट्रेस होने लग रहा है, तो फिर आप फोर्सेप लगा सकते हो। और द कॉर्ड इज टू बी क्लैम्प्ड इमीडिएटली एट द बर्थ, प्रीटर्म है ना, तो अगर बहुत सारा अगर ब्लड मास मदर से अगर बेबी में जाएगा, है ना, अगर तो ओवरलोड हो सकता है प्रीटर्म में, तो इसलिए जल्दी कॉर्ड क्लैम्प करना होता है और फिर बेबी को NICU में शिफ्ट करना होता है। अब डिलीवरी कैसे कराओगे, है ना, तो एक तो यह है कि जिसमें आपको सिजेरियन ही करना है ना, तो सिजेरियन ही करोगे तो वो काउंसलिंग करोगे, लेकिन कई बार लेबर में जा रही है पेशेंट, लेबर करते 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 कुछ भी अगर उसको कोई दिक्कत हो गई, बेबी को या तो डिस्ट्रेस हो गया या मदर को डिस्ट्रेस कुछ भी है, तो आप तो पेशेंट से अपन काउंसिल करके रखते हैं कि हो सकता है ज़रूरत पड़ने पर सिजेरियन भी कर सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री क्या है, जेस्टेशन क्या है, कितना वीक्स का है। अगर सपोज बहुत ही 24 वीक्स का ही है, लेबर में जा रहा है, तो उसको तो सर्वाइवल नहीं है ना, तो फिर हम उसमें सिजेरियन नहीं करेंगे, है ना। तो और मदर की क्या विश है, आजकल जो सिजेरियन होते हैं ना, उसमें अगर 10 सिजेरियन हो रहे हैं ना,
तो उसमें से 3 या 4 ऐसे इंडिकेशन होते हैं कि मदर कहती कि मैं तो पेन सह ही नहीं सकती, तो मैटरनल रिक्वेस्ट पे 10 में से 4 सिजेरियन तो मैटरनल रिक्वेस्ट पे हो जाते। ये नया इंडिकेशन है अब आजकल की जनरेशन के लिए, है ना, क्योंकि वो लेबर पेन्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो मेरा सिजेरियन कर दो, मैं नॉर्मल नहीं कराऊंगी, ऐसे आता है। तो व्हाट कैन यू डू, तो मदर के विश, है ना। उसमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इसमें ही है, अगर आपको ज़रूरत भी पड़ी तो फॉर्सेप लगाओगे आप, इसमें वेंट्यूज नहीं लगाओगे। वेंट्यूज में क्या होता है कि सक्शन होता है ना, तो आप ऑक्सीपिट पे अगर सक्शन लगाते हो उसको, तो वैसे ही वो प्रीटर्म है, प्री मैच्योर हेड है उसका, तो उसमें चिग्नॉन वो अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आपको लगाना भी है तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करानी भी है तो वी हैव टू अप्लाई फॉर्सेप, है ना। तो उसमें क्या होता है, केज होता है एक तरह से ना, वो जो आप ब्लेड लगाते हो तो केज, तो कंप्रेशन नहीं होता है इसका। और लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में लगा दो, ऐसे अगर बहुत ज़रूरी है तो कॉशियसली, है ना। इंट्रानेटल आपको जेंटल स्लो डिलीवरी करानी है, एपिजोटमी लगानी है, नियोनेटोलॉजिस्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रीटर्म बच्चा तो निकाल दिया और आपके पास नियोनेटोलॉजिस्ट नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो अगर आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं है, सपोज आप कहीं जयपुर में भी सपोज कहीं काम कर रहे हो और छोटा नर्सिंग होम है ना, अब आपको लग रहा है प्रीटर्म डिलीवरी है, तो आप उसको शिफ्ट करोगे आइदर मदर, और आफ्टर जस्ट आफ्टर डिलीवरी फीटस को आप शिफ्ट करोगे जहाँ पे कि बेटर न्यूनेटल फैसिलिटी हो, है ना। और इंडिकेटेड अगर है तो सिजेरियन करोगे। कॉर्ड क्लैम्प मैंने बताया जल्दी करना है ना, एटलीस्ट 30 सेकेंड, बट बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, तो अर्ली ही करना है कॉर्ड क्लैम्प, है ना। कई बार क्या होता है कि आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत सिक है ना, मेकोनियम भी पास कर दिया। जब बच्चा डिस्ट्रेस में होता है तो बेबी पासेस मेकोनियम, तो आपको लग रहा है कि मेकोनियम आ रहा है लेकिन आपने डिलीवरी तो करा दी, तो अब नियोनेटोलॉजिस्ट उसको लगा फटाफट दो हमारे को बेबी, है ना। तो उसमें आप वेट थोड़ी करते रहोगे कि अब हाँ अभी आ रहा है वो क्लैम्प करेंगे, तो फटाफट उसको ब्लड जितना हो रहा है क्लैम्प लगा के कट करके दे देते हैं, है ना। और पोजीशन जो होती है हेड लो रहती है बेबी की बिफोर क्लैंपिंग द कॉर्ड, है ना, ताकि बेबी में थोड़ा बहुत ब्लड चला जाए। फीटल कॉम्प्लिकेशन कुछ भी हो सकते हैं प्रीटर्म में, पल्मोनरी हो सकते हैं, जीआईटी हो सकते हैं, है ना, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जॉन्डिस हो जाता है प्रीटर्म बेबी को, हाइपोथर्मिया हो जाता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज ये हो सकते हैं, है ना। आई में कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर जो बेबी होता है ना, तो उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, है ना, तो 100% ऑक्सीजन लगाते हैं, तो कई बार ऐसे बच्चों में रेटिनोपैथी हो जाती है और ब्लाइंडनेस हो जाती है फीटस को, है ना। तो ये प्रिकॉशन रखनी होती है, क्योंकि हमने भी देखा है 1-2 बच्चे ऐसे जिनको की ब्लाइंडनेस हो गई है बिकॉज ऑफ द 100% ऑक्सीजन गिवन टू द प्रीटर्म फीटस, है ना। तो ये भी हो सकता है कार्डियोवेस्कुलर में, कोई हाइपोटेंशन में जा सकता है बेबी, है ना। रीनल है, हिमेटोलॉजिकल में एनीमिक हो सकता है, कई बार जैसे RH नेगेटिव वाला बच्चा होता है तो एनीमिक हो सकता है ना, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और मतलब, है ना,